So welcome back to my other video, and in this video we'll learn our next chapter, that is न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये हमारे चैप्टर बायो का रिलेटेड चैप्टर है और ये चैप्टर रह गया था, तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। So basically, as you know that for our survival we just need to eat food because food provides us energy and also help in repairing of our body. So all organisms need food for their movement and activities, that's life activities and metabolic activities. So the process of intake of food and its utilization by the body of an organism is known as nutrition. So here's the define. So carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are the different components of our food, and these are called nutrients of our food. The food needs food to grow, so I mean the organism need food to grow, to repair damaged tissue, to derive energy, to carry out life processes such as life sustaining processes, and reproduction. Excretion, reproduction means the process of copy something, and excretion means the process of removal of waste from out of the body. Out of the body is called excretion. So here we have two modes of nutrition, that is the autotrophic nutrition and heterotropic nutrition. So autotrophic nutrition, the word autos means self, which is a Greek word. So autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which the organisms prepare its own food from the simple substances like oxygen, carbon dioxide and sunlight. So we are talking about here photosynthesis, and autotrophic nutrition is found in plants. So because they contain chlorophyll in their leaves, and that's why autotrophic nutrition is only found in plants, क्योंकि आप जानते हो क्लोरोफिल हमारा जो होता है वो प्लांट्स के लीव में मेनली प्रेजेंट होता है और जिससे वो न्यूट्रिशन कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं अपना फोटोसिंथेसिस, तो इसलिए वो उनकी लीव्स में पाया जाता है। एंड प्लांट्स हैव अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आप जानते हो हमारा ग्रीन कलर क्लोरोफिल होता है, और ये ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो कलर होते हैं हमारी लाइट के, एज यू नो डेट, हमारी जो लाइट के होते हैं वो 7 मेन कलर्स होते हैं, और उसमें से हमारी जो क्लोरोफिल होता है वो हमारे रेड एंड ब्लू कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सारे कलर रिफ्लेक्ट कर लेता है। और जो हमें ग्रीन उसका पिगमेंट दिखता है वो इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 कलर्स के एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो इन दिस केस हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी फूड प्रिपेयर होता है with the help of water and oxygen in the presence of sunlight. So this process with the help of water and carbon dioxide in the presence of sunlight is called, so this process is commonly known as the photosynthesis. In case of heterotropic nutrition, the organisms take nutrition or depend upon other organism is called heterotropic nutrition. Heteros means other, ठीक है? So the organism which feed through the heterotropic mode of nutrition are called heterotrophs. ये आप अपने 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। So here you are giving a very simple fact, that is animals and human beings are heterotroph and they cannot produce their own food and they get their food from the plants or other animals, ठीक है। इसके बाद हम heterotropic autotrophic न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं प्लांट्स में। सो बेसिकली ये फैक्ट आपको वही आएगा जो मैंने अभी आपको बताया था, ये आपको दे रखा है, that is the chlorophyll gives plant their green color because it absorbs the red and blue light and reflects green light, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है ग्रीन लाइट को, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis. So we have the following requirement for the photosynthesis. The first requirement is the sunlight. So sunlight is an essential requirement for the process of photosynthesis, and chlorophyll green pigment present in leaves, that's a green pigment present in leaves, absorb sunlight and initiate photosynthesis. So in this case the chlorophyll is also important, which is the green pigment which is present in the leaves of the plant, and chlorophyll absorb the solar energy and converts into the chemical energy through the process called photosynthesis. And in this case the carbohydrates are produced, and we have the another requirement, is the carbon dioxide. So carbon dioxide means CO2. So carbon dioxide is the main raw material which is used by the plant in the synthesis of the carbohydrate. Let's go to glucose. Glucose and carbon dioxide present in the atmosphere is taken in by the plants through the stomata in their leaves or stomatal pores, we can also say,
and thereafter on reacting with water in the presence of sunlight and chlorophyll, the carbon dioxide get converted into the carbohydrates. Okay, so then our next requirement is water. As you know, water is the other raw material required for the synthesis of the carbohydrate by plants in the process of photosynthesis, and water is absorbed by the root from soil and it is transported to the leaves through small pipes and tubes in the plants that are the what are the two types of tubes or pipes within the plant that are xylem and phylum. So photosynthesis, the process of synthesis of food called glucose by the green plants from the carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight is known as photosynthesis, a complex definition. Okay, so here the equation is given, that is the carbon dioxide plus water, sunlight upon chlorophyll, and these are the reactants, and then with the product it is a C6H12O6 and oxygen we get during the process of photosynthesis. So site of photosynthesis is the chemical equation for the photosynthesis which you can learn, and here we have the next point, is site of photosynthesis. So we have the chlorophyll and stomata. The parts of the plant which contain chlorophyll are the site of the photosynthesis, that are the leaves. Okay, so chlorophyll is chiefly present in the leaves. So मैं आपको पहले बता चुका हूँ leaves होते हैं, and in some quantity in the young stem. some quantity में मतलब बहुत ज़्यादा little quantity में वो stem में present होते हैं जो हमारा plant young होता है, लेकिन जो बड़े बाग होती हैं आपने देखा होगा कि वो ग्रीन कलर की नहीं होती, मतलब उनमें कोई भी स्टोमेटा मेरा कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. सो दीज पार्ट्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. ठीक है, फूड फैक्ट्रीज क्या, फूड बनाते हैं भाई, फूड फैक्ट्रीज इसीलिए कहलाते हैं. सो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट हमारे जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और हमारा क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में होता है. So these chloroplasts are scattered throughout the leaf cell, और scattered होते हैं, फैले हुए होते हैं हमारी पूरी leaf cell में. And stomata, leaves have tiny pores called stomata on their surface, and each stomata means singular, and singular में stomata हम कह सकते हैं, is guard by the two guard cell. So guard cell का structure मैं अभी आपको दिखाऊंगा. And stomata allows the carbon dioxide to enter the leaves and reach up the chloroplast so that it could be used in the process called photosynthesis. So the oxygen produced during the process also escape through the stomata. Exchange of gases. ठीक है, importance of photosynthesis. The photosynthesis is very important process. So why is this important process? Let's read. So the first importance of the photosynthesis is that the photosynthesis produces food for plant, and this plant in turn serve as food for other organism like animals and human beings. तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट से क्या कहना चाह रहा है. एंड फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन एयर. सो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे बैलेंस बना के रखती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच ये प्रोसेस. एंड फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. उस तरह से हमें ऑक्सीजन भी मिल जाती है हमारी ब्रीथिंग के लिए, जो मेनली हम इस्तेमाल करते हैं, और अदर ऑर्गेनिज्म जो वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू इस्तेमाल करते हैं. और हमारे पास इसमें नोट दे रखा है, द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च. तो बेसिकली जो हमारा ये होता है स्टार्च, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम इसे कह सकते हैं स्टार्च. ग्लूकोज से हमें बनता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च, और स्टोर होता है वो, एंड स्टार्च इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम. जैसे प्रोडक्ट स्टेम में आपका स्टार्च होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं. इसी तरह से फोटोसिंथेसिस इज नॉन ग्रीन प्लांट. तो नॉन ग्रीन प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन प्लांट हैविंग कलर्ड लीव्स लाइक द वॉलेट लीव्स, एंड देयर color is due to the presence of the other color pigment in excess, and but chlorophyll is also present in them even though its presence is masked by the other pigment. सो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे कलरफुल प्लांट्स में होते हैं, हम सोचें अगर उनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, तो बेसिकली उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, लेकिन ग्रीन पिगमेंट के साथ उनमें अदर पिगमेंट्स भी होते हैं, और वही पिगमेंट उन्हें अलग अलग टाइप के कलर्स देते हैं. सो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड एंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. सो होता क्या है, जब भी हमारा फोटोसिंथेसिस कैरी होता है, सो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन. उसमें कार्बन हाइड्रोजन के हमारे जो ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, एंड
इसमें क्या होता है, फॉर प्रोटीन प्लांट नीड नाइट्रोजन एंड द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट बी यूज्ड एज सच पर प्लांट एंड नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉलोइंग वेज। सो बेसिकली प्लांट जो प्रोटीन बनाते हैं वो नाइट्रोजन की मदद से बनाते हैं, और ये नाइट्रोजन हमारे नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया कॉल्ड रिजोबियम बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन आवर रूट and convert free nitrogen gas of air into the nitrogen compounds which are then used by the plant. So the second point is the farmer add manure and fertilizer rich in nitrogen, potassium and other minerals, which is nitrogen, potassium, phosphorus, and NPK common fertilizer name, and urea. So urea is a common fertilizer, and these substances dissolved in water and are taken by the roots to various plants for the synthesis of proteins. And this way the plant fulfill their requirement of the nitrogen along with the other constituents. So plant can grow synthesis component of food other than the carbohydrate such as the protein, fats, and other mode of nutrition also here, that is the heterotropic nutrition in plant. अब हमने पढ़ा था अब तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्लांट में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है पैरासाइटिक प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो चलिए रीड आउट करते हैं। सो बेसिकली पैरासाइटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट विच लिव्स ऑन अदर प्लांट एंड ड्रॉ इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स बॉडी completely or partially and use this nutrient for their growth, and this type of nutrition is called a parasitism। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रखा है कसकटा। कसकटा प्लांट जो होता है वो किसी और प्लांट के ऊपर उसके आई थिंक अपनी स्ट्रक्चर की मदद से उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। उसी के न्यूट्रिएंट्स वो हमारा जो होस्ट प्लांट होता है जब वो अपना फूड बनाता है तो ये उस फूड को कंज्यूम कर लेता है, मतलब खुद तो बनाता नहीं है, दूसरे का फूड ले लेता है। तो ये इस टाइप के प्लांट्स को हम कह सकते हैं पैरासाइटिक प्लांट। सो द प्लांट ऑन विच द पैरासाइटिक प्लांट ग्रोज कॉल्ड द होस्ट प्लांट। अभी मैंने आपको बात कर दी होस्ट प्लांट कौन सा होता है, एंड द पैरासाइटिक प्लांट सर्वाइव्स on the nutrition of the host plant and sometimes the host plant even dies from the lack of nutrition। मतलब जितना भी हमारा होस्ट प्लांट होता है तो न्यूट्रिशन बनाता है, कभी कभी तो ये कसकटा उस पूरी न्यूट्रिशन को ले लेता है और उस होस्ट प्लांट को मार देता है। सो कसकटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट दैट गोस ऑन प्लांट एंड इट इज येलो ट्यूबुलर वायर लाइक एंड कवरिंग विद द कंप्लीट होस्ट प्लांट like a mesh। Okay, then after cascata have the special structure in them and called structure are given here, that is called the hostoria, and hostoria penetrate through the host body and they suck food and water from the host। सो प्लांट इसमें क्या होता है, हमारे ऑस्ट्रिया के पास एक इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो डीप पेनिट्रेट हो जाते हैं हमारे प्लांट की बॉडी में, होस्ट प्लांट की बॉडी में, और उसके न्यूट्रिएंट को सक कर लेते हैं, मीन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे कसकड़ा तक पहुंचा लेते हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारा जो होस्ट प्लांट होता है वो तो मर जाता है। तो इस टाइप के प्लांट्स को हम कह सकते हैं पैरासाइटिक प्लांट। और उसके बाद हम इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में बात करते हैं। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम सुन के हम पता लगा पा रहे होंगे, मतलब इंसेक्ट से इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो इंसेक्ट से कनेक्शन क्या होता है, insectivorous plants are those plants which feed on insect by trapping and digesting them through various enzymes। so example ये आपका ये रहा पिचर प्लांट दे रखा है, और पिचर प्लांट के अलावा हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सनड्यू भी इसके अन्य एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये प्लांट बेसिकली क्या करते हैं, जब भी कोई इंसेक्ट उनके पास आता है तो उनके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये उन स्ट्रक्चर्स की मदद से उस हमारे इंसेक्ट को कैप्चर कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, और उसके फिर जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें धीरे धीरे उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर कर जिंदा रहते हैं। सो ये बेसिकली बड़ी ही ज़्यादा आई थिंक आश्चर्यजनक आपको लगेगा जब आप इनकी फीडिंग को देखोगे। आप नेट पर डाल के ज़रूर देखिएगा और आप इनकी फीडिंग प्रोसेस को देखिएगा किस तरह से वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट्स को पकड़ता है। तो आप नेट पर डाल के देखिएगा और आपको ये ऐसा लगेगा डेट हमने एक अच्छा फैक्ट जाना। सो टू फुलफिल दियर नीड ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की एक्चुअली होता क्या है, नाइट्रोजन की इनकी जो नीड होता है ये बेसिकली वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वाटर लॉक्ड एरिया होते हैं लाइक स्वैम्पी सॉइल एंड विच इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जहाँ पर ऐसे एरिया जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होती तो ये बेसिकली उन एरियाज में पाए जाते हैं, और ये अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए इस टाइप के बन जाते हैं कि ये हमारे इतने भी इंसेक्ट होते हैं उन्हें पकड़ते हैं और उनमें से नाइट्रोजन को सक कर लेते हैं और अपने न्यूट्रिशन के इस्तेमाल करते हैं। द लीव्स ऑफ द पिचर प्लांट आर मॉडिफाइड इन द शेप ऑफ द पिचर
and with the top of the leaf forming a lid. ढक्कन टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, लाइक अ कंटेनर एंड इट इज अ लिड. सो व्हेन enters in this container or container like structure, the lid just only closes and इस तरह से हमारे इसमें ऑर्गेनिज्म वो ट्रैप हो जाता है. और इस तरह से इसके बाद इसमें जो एंजाइम होते हैं वो धीरे धीरे से, ये हम देख पा रहे होंगे आप किस तरह से पूरे प्लांट की तरह कनेक्टेड है, और उसमें से एंजाइम लेकर ये हमारी विनस फ्लाई ट्रैप उसके सारे एंजाइम को प्लांट तक पहुंचा देते हैं. जैसे कि नाइट्रोजन उनके लिए पकड़ा है तो नाइट्रोजन को जितने भी उनके कंपाउंड्स होते हैं सबको पहुंचा देते हैं, और इस तरह से अपने फीड करता है. तो इस टाइप के इंसेक्टिवोरस प्लांट होंगे. तो इंसेक्टिवोरस मीन्स इंसेक्ट को खाने वाले. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं. सो एंड द टाइप इज द सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. सो सम प्लांट्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो वाइट कलर के दिखते हैं. दिस प्लांट्स ग्रो ऑन द स्पॉइल्ड फूड, खराब हो जाता है खाना, and decaying vegetables. Actually these are the group of many plants called fungi. Fungi group होते हैं and they are of different types के होते हैं, and some are the umbrella like, कुछ हमारे umbrella like के स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, that is the mushroom, and some ball like, और कुछ ball like होते हैं like the puff balls, and some paper pin like, और कुछ paper pin की तरह दिखते हैं, that is the rhizopus. तो ये सारे ऑर्गेनिज्म हमारे किसी भी डिकेइंग ऑब्जेक्ट के थ्रू न्यूट्रिशन करते हैं. सो इट इज गिवन हियर, these plants secrete gaseous juices on the dead and decaying object on which they grow, and they absorb the nutrition, and this type of nutrition is called the saprophytic nutrition. Such plants are the saprophytes or saprotrophs. तो both हमारे पास नेम आ गए हैं. And fungal spores are generally found in air like dust and they keep floating. Floating means तैरते रहते हैं हवा में, and when they land on the wet and warm materials they germinate and grow, and they usually grow in the wet and warm season. गर्मियों के मौसम में ये बेसिकली आपने देखा होगा, आप जिसे शायद आई थिंक हुआ कहकर जो बुलाते हो आप, ये वही है, ठीक है, फंगल स्पोर्स. और इस तरह से जर्मिनेट होते हैं उसी के टाइम. उसमें जो सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो जर्मिनेशन के लिए होता है, और जब वो सीड लाइक स्ट्रक्चर किसी ऐसी जगह पर लैंड करता है जो जगह उसके ग्रोथ के लिए सूटेबल हो जाती है, तो वो एक प्लांट में तब्दील हो जाता है. शायद आपने, अगर आप एक विलेज एरिया में रहते हो तो आपने उसे देखा हो. सो फंगी इफेक्ट ग्रो ऑन द ह्यूमन एंड ह्यूमन बॉडीज एंड कॉज इन्फेक्शन, एंड दिस आर हार्मफुल, कीप योर बॉडी ड्राई. सो फंगी हमारे इफेक्ट दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसमें. सम फंगी आर यूजफुल एडिबल लाइक मशरूम. मशरूम को हम खा भी सकते हैं, क्या आपको पता है? लेकिन सारे मशरूम हमारे एडिबल मत खाने लायक नहीं होते, वार्निंग भी दे रखी है, ठीक है. आगे दो जानकारी इज वेरी डेंजरस. सम रिलेशनशिप ऐसे दो पार्टनर जो आपस में कनेक्ट होकर दोनों को बेनिफिट मिले, इस टाइप की अगर हमारी कोई न्यूट्रिशन हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा. तो इसी टाइप के न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं. द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूनिक इन विच द टू ऑर्गेनिज्म और टू एनिमल्स और डिफरेंट कैटेगरी लिव टुगेदर एंड आर बेनिफिटेड. This is called the symbiosis, means living together, and relationship is called the symbiotic relationship. इसमें आपका लाइकन बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल होता है, जो लाइकन आपके ट्री ट्रंक ओल्ड वॉल्स पे पाया जाता है, एंड इज वन सच एग्जाम्पल. इट हैज़ टू पार्टनर. आप जानते हो कौन कौन से पार्टनर होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द फंगस एंड अदर इज द एल्गा. गिवन होगा आई थिंक. फर्स्ट द फंगस एंड द पार्टनर एल्गी, या एल्गी गिवन है. सो फर्स्ट पार्टनर जो फंगस होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है हमारे एल्गा को, और एल्गा के पास अपना क्लोरोफिल होता है, तो वो क्लोरोफिल की मदद से क्या बना देता है? फूड बना देता है. और इस तरह से दोनों पार्टनर फूड को शेयर कर लेते हैं और एक अच्छी हमारा मतलब न्यूट्रिशन कर लेते हैं, अपना काम चलाओ. तो लाइकेंस ग्रो इज द ग्रीन पैचेस ऑन रॉक्स. मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से. सो लेग्यूमी प्लांट, pulses, beans and some trees, the fungus lives on the root, and the fungus provides the water and nutrients absorbed from the soil to the plant on tree, and it get shelter and nutrients from the plant or tree. So leguminous plant भी आपका इसी टाइप का प्लांट है, और root nodules have the bacteria that provide the nutrients for making the protein by plant. So the plant in return gives the shelter and nutrition. तो वही आपके symbiotic relationships में दो प्लांट के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइकन एंड द सेकंड इज द leguminous plant. So next topic is the replacement of the nutrients in soil.
अब हमारे न्यूट्रिएंट्स तो कंज्यूम हो गए, ठीक है, ये सारी न्यूट्रिशन के थ्रू हमने सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम हो गए, लेकिन ये वापस कैसे आते हैं? सो इस बेसिस में हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली होता क्या है। सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट्स एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू नरिश देमसेल्फ, अपने आप को ये नरिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स का। एंड द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स absorb the plants from the soil are nitrogen, that is nitrogen, potassium and phosphorus, NPK, as we have discussed earlier। आपका जो कॉमन फर्टिलाइजर उसे इसी चीज़ पे बेस होता है। and some crop use some nutrients in large amount and the in few amounts। after the growth of wheat plant, nitrogen get reduced in soil and very little is left for the next crop plant। and if the plants are sown in the soil where they will be unhealthy, to gain enough nutrients, the farmer replenish or restore it by, first of all, first process is the adding manure and fertilizer, and second, planting leguminous plant। ठीक है, by this way you can easily restore the plant, utilize them। और इस तरह से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस हमारे सॉइल में आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस भी दे रखा है जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे वर्ड टू नो भी आप एक बार लर्न कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में लिखने के बाद। तो चलिए हम एक्सरसाइज पे आते हैं। सो फिर से वही पुरानी बात, मैं आपको एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, बिल्कुल छपाऊंगा नहीं आपको, सिर्फ आपको इसे पढ़ना है और आपको इसे समझना है कि इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करता हूँ अभी, तो आप क्वेश्चन आंसर देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम एक बात को क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड मेंशन द मटेरियल सेंसिटिव फॉर द फोटोसिंथेसिस, आप जानते हो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड एक्सप्लेन एनी टू मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट, ये भी हम, ये सब हमारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक आप इजीली इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंटिल देन गुड बाय।